Hello everyone. So here we are for the third part of the chapter number 2, that is acids, bases and salts. In this video we will be completing the whole chapter in this third part. In the previous video, that is this part 2 of this chapter, we discussed about hydrogen ion concentration in acids and bases, pH scale, importance of pH in daily life and pH of salts. Now in this video, that is the third part of this chapter, we will be discussing about the chemicals from salts and their uses and water of crystallization. So let's start with the chlor-alkali process. See what happens in chlor-alkali process and the process of electrolytic decomposition of brine. Now what is brine? It is aqueous solution of sodium chloride. क्लोर-एल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है. फाइन. अब सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए हम उसमें वाटर मिलाते हैं. जब उसको वाटर मिलाते हैं तो उसको ब्राइन बोलते हैं. फाइन. सो ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. In this process, chloride is obtained at the anode and hydrogen gas is obtained at the cathode as the byproduct. This whole process is known as chlor-alkali process. So in short, जब सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड लिक्विड जिसको हम ब्राइन भी बोल सकते हैं, जब उसका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है तो तीन प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस. इसमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ अ मेन प्रोडक्ट. Chlorine and hydrogen gas are the byproducts. So this process is known as chlor-alkali process. Now the products obtained after the electrolytic decomposition of brine. जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स निकल के आए. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द यूजेस. अब ये जो हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है इनके क्या यूजेस होते हैं. The first one, hydrogen gas. It is used as fuel, margarine in making of ammonia for fertilizers, etc. Chlorine gas is used in water treatment, manufacturing of PVC, disinfectants, CFC, pesticides. It is also used in the manufacturing of bleaching powder and hydrochloric acid. Sodium hydroxide. It is used for the degreasing of metals, manufacturing of paper, soap, detergent, artificial fibers, bleach, etc. Let's start with bleaching powder. The formula for bleaching powder is calcium oxychloride, CaOCl2. See, bleaching powder is also known as chloride of lime. It is a solid and yellowish white in color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. Bleaching powder एक cleaning agent होता है. इट इज़ सॉलिड पाउडरी फॉर्म और इसका कलर समथिंग वाइट एंड येलोविश होता है. ओके. एंड इट इज़ ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्मेल. इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि आप दूर से रिकोगनाइज कर लोगे कि येस ब्लीचिंग पाउडर इज़ समवेयर नियर बाय. सी, aqueous solution of bleaching powder is basic in nature. The term bleach means removal of color. Bleaching powder is often used as bleaching agent. It works because of oxidation. Chlorine in the bleaching powder is responsible for bleaching effect. Now, bleach means removal of color. तो जब भी हमें कोई strong color कहीं से remove करना होता है तो हम उसको bleach करते हैं. Bleaching is generally used in for the washing of clothes etc. जहाँ पे बहुत hard stain लग गया हो, हमें उसको हटाना है तो हम वहाँ पे bleaching powder का use करते हैं. See the common uses of bleaching powder. First one is bleaching powder is used as disinfectant to clean water, moss remover, weed killers, etc. Bleaching powder is used for bleaching of cotton in textile industry, bleaching of wood pulp in paper industry. Bleaching powder is used as oxidizing agent in many industries such as textile industry, paper industry, etc. So overall bleaching powder को हम सिर्फ क्लोथ्स क्लीन करने के लिए नहीं, हम इसको कॉटन इंडस्ट्री में, वुड पल्प इंडस्ट्री में, फाइन, मॉस रिमूवर, इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के कलर को लाइट करने के लिए या फिर स्टेन रिमूवल के लिए. द थर्ड वन वी हैव इज़ बेकिंग सोडा एंड द फॉर्मूला इज़ NaHCO3 एंड वी कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट. See, baking soda is another important product which can be obtained using byproducts of chlor-alkali process.
The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Bread soda, cooking soda, bicarbonate of soda are some other names of baking soda. सी बेकिंग सोडा हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हमारे पास क्लोरोअल्कली प्रोसेस से जो भी बाय प्रोडक्ट्स आए हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको यूज़ करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं. ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, ये इसके दूसरे नेम्स हैं. सी द प्रिपरेशन मैथड. बेकिंग सोडा इज़ ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. जो ब्राइन है हमारे पास, दैट इज़ NaCl इन एक्वस, उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तब हमारे पास बेकिंग सोडा बनता है. इन दिस प्रोसेस calcium carbonate is used as the source of carbon dioxide and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from the ammonium chloride. Now, what are the properties of sodium bicarbonate? Sodium bicarbonate is white crystalline solid but it appears as fine powder. क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है बट हमें पाउडर लाइक अपीयरेंस इसका दिखता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. It means it reacts with acids also, it reacts with bases also. Sodium hydrogen carbonate is sparingly soluble in water. It is also soluble in water sometimes. So this is baking soda, that is also known as sodium bicarbonate. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ बेकिंग सोडा. अब अगर हम बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आते हैं. सी व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. Sodium carbonate formed after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate decomposes into sodium oxide in carbon dioxide on further heating. This reaction is known as hydration reaction. जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल के आते हैं. फर्दर जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आते हैं. ओके, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा. सी बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर which is used in cooking as it produces carbon dioxide which makes the batter soft and spongy. Baking soda is used as an antacid also. अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं. बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लैक फ्री. बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर. जो हमारे पास सिल्वर की ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको भी हम बेकिंग सोडा से क्लीन कर सकते हैं. नाउ वी हैव बेकिंग पाउडर. सी बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड. जब हम बेकिंग सोडा में थोड़ा माइल्ड एडिबल खाने लायक एसिड मिला देते हैं तो हमारे पास बेकिंग पाउडर निकल के आता है. जनरली टार्टारिक एसिड इज़ मिक्सड विद बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर. ओके, तो हम बेकिंग सोडा में जनरली कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, टार्टारिक एसिड, जिसके बाद वो बेकिंग पाउडर में चेंज हो जाता है. व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट. जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, उससे सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2 गैस रिलीज़ होती है. नाउ CO2 कॉजेज ब्रेड एंड केक फ्लफी. जब ये CO2 गैस रिलीज़ होती है तो ये ब्रेड और केक्स को फ्लफ़ी बनाती है. टार्टारिक एसिड हेल्प्स टू रिमूव बिटर टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट जो बिटर टेस्ट आता है उसको रिमूव करने में टार्टारिक एसिड इसकी हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव वॉशिंग सोडा. सी वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट. व्हाट इज़ द प्रिपरेशन मैथड. हम वॉशिंग सोडा बनाते कैसे हैं. सी सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट निकल के आता है. नाउ द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज़ ड्राई. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडा ऐश और एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट. जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट हम ऑब्टेन करते हैं वो ड्राई होता है, जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं. नाउ वॉशिंग सोडा इज़ ऑब्टेन बाय रीहाइड्रेशन ऑफ
एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, जब हम सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिक्स करते हैं तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है. सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, हैंस इट इज़ नोन एज सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट. हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट में, तब वो वॉशिंग सोडा बनेगा और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट. Sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water. सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉलिड है जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, जबकि ज़्यादातर कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. ना व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सी, इट इज़ यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज, in the making of detergent cake and powder, in removing the permanent hardness of water, and it is also used in glass and paper industry. So we have a lot of uses of washing soda, that is sodium carbonate decahydrate. So the last topic we are having for this chapter is the water of crystallization. Now what is water of crystallization? See, many salts contain water molecules and are known as hydrated salts. The water molecules present in the salt is known as water of crystallization. हमारे पास बहुत ऐसे salts होते हैं जो हमें ड्राई दिखते हैं बट उनके अंदर hidden water होता है, okay, in the form of some molecules, and these are known as hydrated salts. तो इसको हम, ये जो hidden water है, इसको हम बोलते हैं water of crystallization. For example, copper sulfate pentahydrate, that is CuSO4.5H2O. Now this 5H2O means this copper sulfate is having 5 molecules of water. See, we have a picture over here and it is saying that the water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. किसी भी सॉल्ट के 1 formula unit में जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. सी, वी हैव अ एग्जाम्पल ओवर हियर, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. हमारे पास जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं. जब हम इसको हीट करेंगे तो जब इसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तब ये सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा. इसका जो 5H2O है ये इवेपोरेट हो गया तो इसका कलर चेंज होके वाइट हो गया. सो दिस इज़ द concept of water of crystallization, which we also know as hidden water of any salt per unit of a salt. Plaster of Paris. It is a very common term we must have heard millions of times. It is also known as POP. Plaster of Paris एक ऐसा टर्म है जिसको हमने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना होगा, जिसको हम POP भी बोल सकते हैं. See, what is plaster of Paris? Calcium sulfate hemihydrate. इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड द फॉर्मूला इज CaSO4 प्लस हाफ H2O, मीन्स वाटर का सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन. आई हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम. एक कैल्शियम का हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम. जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है. एंड अगेन अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर ऐड करेंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा. इट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सी द रिएक्शन ओवर हियर, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस 1.5 H2O गिव्स यू कैल्शियम सल्फेट 2 H2O. जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट 2 molecules of water obtained होगा. Now this CaSO4.2H2O is gypsum. Plaster of Paris is used in making of toys, designer false ceiling, etc. Doctors use plaster of Paris to set the fractured bones. So हमारे पास plaster of Paris के बहुत सारे uses हैं. हम इससे टॉयज़ बनते हैं, डिज़ाइनर सीलिंग बनती है, एंड डॉक्टर्स इसको फ्रैक्चर्ड बोन, इधर लेग्स और हैंड्स और एनी बॉडी पार्ट, उसको सील करने के लिए यूज़ करते हैं. So that's all for the chapter. This was the third part of this chapter. And the last part, just to inform you, there are 2 more parts of this chapter, that is part 1 and part 2. So to get updated for the full chapter, you should like observe or see the video in a row, all the 3 parts, then only you will come to know about the whole topics. Okay, so that's all for this much. I hope you like the content. Stay safe, stay healthy, and keep studying.